So the correction mainly is urea as a byproduct being released between arginine and ornithine. So this is merely the presentation of that Krebs-Hanslet cycle, which is being supported and anticipated by Krebs cycle. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये प्रोसेस चलता है, तो उसके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है एस्पार्टिक एसिड, उसको कंज्यूम करते हुए अर्जिनोसक्सिनेट और फ्यूमरिक एसिड, ये क्रेब्स साइकिल में कंज्यूम होता है। और ये एक एलाइड बाईपास साइक्लिक प्रोसेस है टू कंपनसेट द डीएमिनेशन टॉक्सिसिटी, अमीनो एसिड की जो डीएमिनेशन टॉक्सिसिटी है बाय द प्रोडक्ट अमोनिया। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज वेयर इन दिस कंप्लीट प्रोसेस the product carbamoyl phosphate is produced which is being combining with ornithine to give citrulline. So this is the correction, and the bypass, excuse me, now one of the interesting aspect is through this complete presentation we generate a question that is under the topic competitive window. Till date you have experienced that there are three such products: inositol phosphate. While you have experienced the chapter that is मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़ा था, मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर सिस्टम, तो उसमें क्रॉस ब्रिज साइकिल में आपने देखा था दैट इज द प्रोडक्ट कॉल्ड क्रिएटाइन फॉस्फेट। अभी अभी आपके सामने ये वर्ड आया दैट इज कार्बामोइल फॉस्फेट, एंड लेट मी जनरेट एन अनदर ऑप्शन एज कैल्शियम फॉस्फेट।
So let the options be A, B, C, D, and we have to change the question pattern, and accordingly the answer and the option will change. One of the following is the major maximum salt deposition in bone matrix. Answer हो जाएगा calcium. The maximum salt which is found deposition in the bone matrix is calcium phosphate. Similarly, one of them act as a secondary chemical messenger. Answer हो जाएगा inositol phosphate. हालांकि वो inositol triphosphate है, वो बनता है inositol phosphate से diphosphate triphosphate बनता है IP3. But एक option बना है, yes, inositol phosphate by its modulation it can act as a secondary chemical messenger. And finally, cross bridge cycle. While a muscular contraction being performed, what is the quickest source of dephosphorylation? Answer होगा क्रिएटाइन फॉस्फेट. और आज का ये क्वेश्चन कि विच इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग यूरिया साइकिल, मतलब क्या कंज्यूम होता है, दैट इज कार्बामोइल फॉस्फेट. तो ये था वो करेक्शन है ना, लास्ट डे रिवर्स में मैंने बना दिया था, वेयर नॉट मेंशनिंग द आर्जिनोसक्सिनेट. तो ये करेक्शन है, इसको आप इसको इंक्लूड कर लीजिए. So today we have to continue the lecture in sequence of the chapter with the topic ultrafiltration, the first very step of urine formation, uropoiesis, which is a completely physical event involving generation of the hydrostatic pressure to filter the blood. So to go through the topic, so this is a mere presentation of that complexity, as well as you could say the coiling nature of glomerulus, usko present karta hua presentation, followed by perforated epithelium of Bowman's capsule to give rise to those slit pores. So you are already very much aware with the all concepts and arrangement over here. Today we are interested more in using that area as a filtering unit. How the area has been more popular as a filtering unit. So last day I was on discussion with some biostatistical aspect of the event, that body avails two parameters. इस घटना को अंजाम देने के लिए शरीर दो पैरामीटर्स अवेलेबल करते हैं एट अ टाइम. वन इज योर कार्डियक आउटपुट, यानी जो कि टोटल ब्लड वॉल्यूम बॉडी में
लगातार सर्कुलेट कर रहा होता है और उसका एक हिस्सा, अ पार्ट ऑफ इट, अ सेगमेंट, अ फ्रैगमेंट ऑफ इट इज अवेलेबल टू द किडनी, जिसे मैंने आपको हेडिंग देके समझाया था, रीनल ब्लड सप्लाई। इन बेसिक पैरामीटर्स को समझने के बाद, नाउ द क्वेश्चन इज, व्हेनेवर द बॉडी experiences a normal blood pressure of 120 mmHg, at that very time each nephron, है ना, which is being anticipated by presence of a differential diameter arterioles, experiences the entry of blood with 70 mmHg pressure. So this pressure is actually called glomerular hydrostatic pressure. It is not blood pressure, it is basically blood pressure, but whenever it enters, क्योंकि एक्चुअल ब्लड प्रेशर बॉडी का जो है इट रेंजेस फ्रॉम 80 to 120, डायस्टोलिक 80 mmHg एंड सिस्टोलिक प्रेशर 120. जब थ्रू आउट बॉडी पैरामीटर 20, 120, 125 mmHg होगा, तब किडनी में एंटर करता हुआ ब्लड 100 mmHg का होता है और फिर अल्टीमेटली एक एक नेफ्रॉन तक पहुंचते पहुंचते और स्लो डाउन हो जाता है, दैट इज समथिंग अराउंड 70 mmHg. ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इसको कहते हैं, द प्रेशर विथ विच इट एंटर्स द एफरेंट आर्ट्रियोल. बट सिमिलरली आफ्टर गोइंग थ्रू दिस एरिया, व्हाइल इट एग्जिट आउट, हालांकि ये फिगर हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, बट टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर इट एक्सपीरियंसेस, एंटर जितने ज्यादा प्रेशर से करता है उतने ज्यादा प्रेशर से वो एग्जिट नहीं कर पाता, रिजल्टेंट द ब्लड ट्राई टू होल्ड ओवर हियर, दैट व्हाट इट मींस. कुछ फॉर अ व्हाइल, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए ब्लड यहां पर होल्ड डाउन होगा एंड डेफिनेटली फिर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा. That pressure is called BCOP. What does it mean? It is the blood colloidal osmotic pressure, which is equal to 30 mmHg. ब्लड क्लॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो भी ब्लड प्रोटीन्स फॉर अ वाइल मौजूद होते हैं उसके वजह से और वाटर कंटेंट मिला के वो यहां पर आकर जो है नेट 30 mmHg का हो जाता है टुवर्ड्स डाउन द ग्रेडियंट, यहां से यहां इस तरफ, और रिजल्टेंट कुछ हद तक तो फिल्ट्रेशन होना शुरू हो चुका होता है. सो रिजल्टेंट जीएफ प्रिपेयर्स, हमेशा यहां थोड़ा बहुत जीएफ तो रहेगा ही. लेकिन इस कैप्सूल के अंदर मौजूद ये लिक्विड, ये फ्लूइड, इट इज ऑल्सो फ्लूइड, इसका भी एक अपना नेट प्रेशर कंटेंट होगा जो ऑपोजिट वे में ओपोनेंट फोर्स की तरह काम करेगा. जस्ट इसके ऑपोजिट, एंड दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय the opposing force exerted by the collected GF is called capsular pressure. क्या कहते हैं? CP, capsular pressure, and that value is something around 20 mmHg. So overall the major force was hydrostatic pressure entering, और उस ये प्लस ये दोनों इसके opposing force हैं, दिख रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन नेट प्रेशर ये दोनों मिलके इसके खिलाफ तब जाके जनरेट होता है. सो दैट्स व्हाट वी कंक्लूडेड लास्ट डे इन दैट टैबुलेट पैटर्न ऑफ प्रेजेंटेशन कॉल्ड इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू GHP या HP minus
BCOP plus CP. The value is 20 to 25, लेकिन 20 mmHg that is the effective filtration pressure, और इसी pressure से by EFP 20 mmHg kidney filter blood with regular GFR. जो रेगुलर GFR है, जब इतने प्रेशर से दोनों किडनी मिलके बॉडी के टोटल जो भी वॉल्यूम ऑफ ब्लड को 5 मिनट के अंदर किस रेट से फिल्टर करता है, दैट इवेंट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, and that what we can calculated last day, that is 120 to 125 ml per minute, or rather it is 170 to 180 liter per day. Now the next discussion is whatever GF produced, next question pattern. What GF contains, क्योंकि जो GF यहां तैयार होता है फॉर अ वाइल इट इज ऑफ व्हाट टोनिसिटी, आंसर होगा आइसोटोनिक. फॉर अ वाइल इट इज आइसोटोनिक, यानी उसकी क्या कॉम्पोजिशन है, व्हाट इज व्हाट GF कंटेन्स, आंसर होगा प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स, क्योंकि फिल्टर एक्चुअली क्या होता है, प्लाज्मा. या फिर इसी को बोलने का और एक तरीका इज इक्वल टू ब्लड माइनस कॉर्पसल्स प्लस प्रोटीन्स. बाकी सब कुछ होगा GF में. GF हैज ऑल थिंग विच इज इक्विवेलेंट टू ऑल दोस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स जो कि प्लाज्मा में था, वो सब कुछ होगा सिर्फ प्रोटीन्स छोड़कर, अगर प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स का है. और ब्लड से अगर कंपेयर करेंगे तो ब्लड माइनस कॉर्पसल प्लस प्रोटीन्स. तो इसी बात को पूछने का आंसर देखिए फिर क्या होगा. एक तो ये है व्हाट GF कंटेन्स, और व्हाट GF डज नॉट कंटेन. तो भी आंसर क्या होगा, कॉर्पसल्स एंड प्रोटीन्स, क्योंकि बाकी तो सब कुछ सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब और जो है होल्ड डाउन होने के लिए या सीक्रेट होने के लिए ब्लड में चला जाएगा, GF में चला जाएगा फिल्टर होके. सो द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक इज, what is the product of ultrafiltration? The very first physical event of urine formation is simply generating a pressure, net effective filtration pressure by these different factors. The product is GF. It is for a while isotonic. As soon as it enters PCT, it has become hypotonic. फिर वो हाइपोटोनिक से क्या होता है, हाइपरटोनिक, फिर हाइपरटोनिक से फिर हाइपो, एंड फाइनली हाइपर. फाइनली composition of urine.
To maintain the continuity, see the statement, GF undergoes 3 events after filtration. What they are? Reabsorption, osmoregulation and secretion. फाइनली क्या होता है? GF turns into around 4 times more concentrated fluid, that is urine, excretory fluid of the body, urine, which is around 4 times more concentrated than GF. A normal urine output for human is 1.5 to 1.8 liter per day. That's the quantity. pH, it is 6.8, slightly acidic. ठीक है, रेंज इज 5 टू 7.8. रेंज कितना है? 5 टू 7.8, वही डाइल्यूट कंसंट्रेट होने के अकॉर्डिंगली. लेकिन एक बीच का फिगर 6.8 आपको बता दिया गया, 6.4 टू 6.8, स्लाइटली एसिडिक. टोनिसिटी, इट इज ऑलवेज हाइपरटोनिक. कैसा होगा? थ्रू आउट द डे अलग अलग रिलेटिव सेंस में बॉडी के फ्लूइड, ब्लड, प्लाज्मा, लिम्फ, जीएफ, हर किसी के कंपैरिजन में वो कंसंट्रेटेड ही होगा ऑल ओवर. हाँ, 2 तरह का यूरिन सैंपल अलग अलग समय में एक ही व्यक्ति के शरीर से निकालेंगे. एक समय कंपैरेटिवली हाइपरटोनिक और दूसरा हाइपो हो सकता है, यानी डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड. लेकिन बॉडी के रेफरेंस में हमेशा यूरिन कैसा होगा? हाइपरटोनिक. तो क्वांटिटी, पीएच, टोनिसिटी, specific gravity, अब देखिए ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. What are the organic constituents? सबसे पहले तो यूरिया, फिर यूरिक एसिड, क्रिएटाइन, क्रिएटिनिन, हिप्पुरिक एसिड. हिप्पुरिक एसिड तो ऐसे तो और भी बहुत सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो मेन याद रखना है, आपको 2 चीजें याद रखना है. यूरिया, द रीजन इज कि ये सब लेस देन 1 ग्राम 2-3 ग्राम तक ये सब रहते हैं, है ना, 1.5 लीटर में. लेकिन थ्रू आउट द डे 30 to 35 ग्राम, 1.5 लीटर यूरिन आउटपुट जो है, या 1.8, वॉट एवर, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड, दिन भर में 30 to 35 ग्राम के बीच यूरिया जो है बॉडी से एलिमिनेट हो जाना चाहिए. एंड रेस्ट हम 50, क्योंकि हम 80 ग्राम तक बर्दाश्त कर सकते हैं, वो हमारा टॉलरेंस रेंज है 24 आवर्स. और उसके बाद उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने के बाद जो है द कंडीशन अराइज, जिसको अभी हमें पढ़ना है, एनामोलीज ऑफ यूरिन बताकर डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम आज देखते हुए हीमोडायलिसिस. वी आर अबाउट टू एंड द चैप्टर टुडे. लेकिन मेरा कहने का मतलब है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, वो दिमाग में क्वेश्चन ओरिएंटेड. हम चैप्टर के एट द वर्ज ऑफ द चैप्टर हम खड़े हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट्स बन सकते हैं, स्पेशली ये जो आखिरी हिस्सा हम डिस्कस कर रहे हैं, यूरिन कॉम्पोजिशन.
One thing I would like to note, does I have completed the topic Mixturation Act? आपको रिफ्लेक्स एक्शन नहीं पढ़ाया ना मैंने? अच्छा ठीक है, वो भी मैं अभी कवर करूंगा, रुकिए. ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यूरिया 30 to 35 ग्राम, यूरिक एसिड. लेकिन दो चीजें आपको याद रखना है. क्यों? क्योंकि मेजर एक्सक्रीटरी वेस्ट कौन सा है? और कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आ जाएगा कि माइनर कौन है, तब आंसर होगा हिप्पोरिक एसिड. माइनर नाइट्रोजनस वेस्ट जो ह्यूमन यूरिन में मौजूद होता है, दैट इज हिप्पोरिक एसिड. तो ये हो गया आपका नॉर्मल कंपोजिशन. और बाकी इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तो सारे सॉल्ट्स होंगे. इसमें सारे सॉल्ट्स है, लेकिन मेन होगा सोडियम एंड क्लोराइड. इसके अलावा पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट सब मौजूद होता है. So this is the composition of urine of human under normal condition, healthy state, per day 1.5 to 1.8 लीटर, जिसमें ये सब चीजें ऐसे मौजूद होनी चाहिए. और जीएफ जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से बनता है, वो इन तीनों प्रोसेस से गुजरने के बाद जो प्रोडक्ट यूरिन निकल के आता है, कंपोजिशन देखने के बाद, now medical science reveals that a person's body could be diagnosed by simply going through a cross check of the urine composition. If the normal composition is within the range, whatever being mentioned, but if it is not so, either it is less or more, then it is a sign of some disorder, not symptom, it's a sign. क्योंकि एक आम आदमी को यूरिन की कॉम्पोजिशन आंखों देखा दिख थोड़ी रहा है, वो तो एक टेस्ट से गुजरते हुए जो रिपोर्ट्स आते हैं, दोज आर द साइन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स एंड साइन? विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिसऑर्डर आर कॉल्ड symptoms. Invisible symptoms of the disease is called sign. And when symptoms and signs go rather in a complex way, we call it syndrome. We call it. So the next heading in continuation to mention the significance to learn the composition of urine is anomalies of urine, where you will come across some of the terms beginning with diuresis, followed by polyuria, है ना. ग्लूकोस्यूरिया भी बोल सकते हैं या ग्लाइकोस्यूरिया, है ना. कीटोन्यूरिया, albuminuria. Diuresis means more formation of urine, urine ज्यादा बनना. Polyuria means more elimination या more release of urine, urge of urination ज्यादा आना और यूरिन ज्यादा आउटपुट होना. So all polyuria are due to diuresis, but all diuresis may not lead to polyuria. Presence of glucose in urine, presence of ketone bodies, तो ये तीनों कंडीशन एक साथ जब होता है, दैट व्हाट वी रिकॉग्नाइज एज
डायबिटीज मेलिटस। अभी क्विक रिवीजन का तरीका है। जबकि डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज characterized by only polyuria, because of insulin deficiency. Diabetes mellitus is a hormonal disorder due to insulin deficiency, whereas diabetes insipidus is via through lack of ADH. Lack of ADH. So yes, it's very correct. After going through the normal composition of urine and its knowledge, when we found it not alike that, दिन में 2.5 लीटर 2 लीटर से ऊपर जो है थ्रू आउट द सीजन थ्रू आउट द ईयर हो रहा है, दैट्स अ केस ऑफ पॉलीयूरिया। तो कॉम्पोजिशन बिगड़ रहा है। डाइल्यूट यूरिन, जरूरत से ज्यादा डाइल्यूट यूरिन पास हो रहा है क्योंकि उसमें वेस्ट तो उतना ही 30 और ये सब जा रहा है, लेकिन वाटर ज्यादा शरीर से जा रहा है। और बनने का कारण क्या है, फिर उसके सिम्टोमेटिक जो है डायग्नोसिस होता है एंड फॉलोड बाय अदर केमिकल कंडीशंस। नाउ अभी अभी आपने देखा जीएफ डज नॉट कंटेन एनी प्रोटीन्स, जबकि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन केस ऑफ प्रोटीन्यूरिया, मतलब यूरिन में किसी तरह का ब्लड प्रोटीन मौजूद होना, दैट इज एल्बुमिरिया। एंड इट्स अ साइन ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन, वन ऑफ द मेजर प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। सबसे अबंडेंट प्रोटीन जो एल्बुमिन होता है, 8% प्रोटीन होता है। उस 8%, सॉरी 6% जो होता है 8% डिसॉल्व सब्सटेंस में से 6 में से 4% तो एल्बुमिन ही होता है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, अगर एल्बुमिरिया है द पर्सन विल बी सिम्टोमेटिकली कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मिक्सोडिमा, ओडिमा, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ऑल द अबव, नन ऑफ द अबव, क्योंकि मैंने जितनों के भी नाम लिए ये कशिंग सिंड्रोम। ऑप्शन क्या बना, ओडिमा, मिक्सोडिमा, कशिंग सिंड्रोम, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, या गर्ल्स डिजीज जिसे हम कह सकते हैं, गर्ल्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। इन चारों बीमारियों में क्या होता है, शरीर जो है इन्फ्लेमेशन, सूजन शो करता है, स्वेलिंग, सम और आइदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सबको मेरी बात आ रही समझ में? व्हाई आई हैव चूजन ऑल दीज ऑप्शंस इन द डिजीज? तो आंसर ओडिमा होगा। आंसर क्या होगा, रिटेंशन ऑफ द वाटर आउटसाइड द ब्लड टिश्यूज में जाकर। क्यों? क्योंकि ब्लड का वाटर कंटेंट को बनाए रखना, रिटेन करके रखना एल्बुमिन का काम है। ये चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग देखेंगे, वहां भी बताया जाता है। लेकिन दिस इज एन एनामोली ऑफ यूरिन। यूरिन में किसी भी तरह का ब्लड प्रोटीन नहीं होना चाहिए, लेकिन वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रोटीन जो किसी कारण से आ जाता है, और अगर वो आने लग गया तो डेफिनेटली हाथ पैरों में जो सूजन आएगा पानी जमा होने से, दैट इज अ सिम्टम कॉल्ड ओडिमा। क्या कहते हैं उसे? सबको क्वेश्चन भी साथ में आया समझ में कि क्या मैंने जनरेट किया? अच्छा, मतलब ये हिस्सा नेग्लेक्ट नहीं करना है, ऐसे पढ़ के जाना है ये। और कुछ चीजें तो ऐसा है बस आपको बस ऑप्शंस में दिया हो तो एटलीस्ट यू शुड नो, क्योंकि एनसीईआरटी में एल्बुमिरिया के बारे में नहीं दिया है, सिर्फ इन तीनों के बारे में दिया हुआ है। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा वो बता दे रहा हूं आपको जिससे कि आगे चल के दिक्कत ना आए।
presence of RBC in urine, hematuria, and presence of pus cells. What are pus cells? Dead WBC plus pathogens. बॉडी में पैथोजन से लड़ते रहते उनको भी मार दिया, प्लस खुद भी शहीद हो गए. द मेटायर सोल्जर्स ऑफ द बॉडी. व्हाट आर पस सेल्स? दे आर दी मेटायर. मतलब शहीद हुए हमारे, जो लड़ते लड़ते कॉन्स्टेंटली अंदर एक कारगिल युद्ध चलता रहता है. थैंक्स टू ऑल दीज रोमिंग एंड पेट्रोलिंग जो करते रहते हैं दिन भर शरीर के अंदर, दोज WBC है ना, ऑफरिंग द सेकंड लाइन ऑफ इम्यूनिटी टू द बॉडी, पायूरिया, पस सेल्स आना. So that's a sign of, the question is कि the body is experiencing UTI. What is the sign of UTI? Urinary tract infection, which is more common in females as compared to males. ये बात मैंने लास्ट क्लास आपके सामने रखा था while we were comparing urethra. बाकी चैप्टर रिप्रोडक्शन में इस बात को और एस्टेब्लिश किया जाएगा कि किस एनाटॉमिक डिफरेंस के कारण ये चांसेस ऑफ इन्फेक्शन उनमें ज्यादा होता है अंडर द टॉपिक STD. क्या पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में? तो पायूरिया, पस सेल्स, डेड WBC प्लस इज अ साइन ऑफ UTI. तो एनसीईआरटी के उस आखिरी पैराग्राफ रिलेटेड टू मिक्सचुरेशन, जिसको अभी हम देखने जा रहे हैं इसके बाद ही, कि यूरिन बनकर तैयार है, उसकी एक अपनी कॉम्पोजिशन है और इट इज बीइंग पार्टली स्टोर्ड. तो थ्रू आउट द चैप्टर 4 बातें मैंने आपको डिफाइन में किया था. द सिस्टम ऑफ सेपरेशन, कंडक्शन, स्टोरेज. सेपरेशन और कंडक्शन अभी तक देख चुके हैं. फिर वो फाइनली स्टोर कहां और कैसे होता है और किस तरह से, अंडर व्हाट कंडीशन आइदर नॉर्मल और इमरजेंसी, रिलीज होना, एलिमिनेट होना. दैट फिजिकल एक्ट ऑफ पासिंग द यूरिन इज कॉल्ड, वॉइडिंग ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्सचुरेशन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स इन द बॉडी, आइदर मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स या स्टोरेज रिफ्लेक्स. उसी को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. लेकिन उससे पहले, अगर एक यूरिन की कॉम्पोजिशन ठीक है, इट्स ओके, वेल टू डू, बट इफ इट इज एग्जिबिटिंग सम साइन सिम्टम्स, व्हाट आर दोज एनामोलीज ऑफ यूरिन, जिसमें अभी अभी आपके सामने ये सारे टर्म्स आए. लेकिन एट लास्ट टॉपिक जेनेटिक्स से अभी अभी कवर कर लेते हैं. एल्केप्टोन्यूरिया. आर यू गेटिंग? कि क्वेश्चन जब बनेगा वो कोई बॉन्डेड क्वेश्चन थोड़ी बनेगा, वो तो अलग अलग जगह के चैप्टर्स के रिलेटेड टर्म्स को ऑप्शन में देके आपको ब्लेंड करके क्वेश्चन बन जाएगा. यस और नो? सबको आ रहा है समझ में लॉजिक? तो गौर करिएगा. एल्केप्टोन्यूरिया, ये दिख नहीं रहा है ये, बिकॉज ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी and this is due to lack of ADH. So these are the two. मतलब कल क्वेश्चन अगर आता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा? Which of the following is the urine anomaly, है ना, due to genetic disorder? कीटोन्यूरिया, हेमेटूरिया, है ना, या एल्बुन्यूरिया, और उनमें से कोई टर्म मेंशन्ड हो जाए. बस इतना एक सिंपल सा क्वेश्चन बनना है. मेरी बात आ रही है सबको समझ में? तो दीज आर एप्टीट्यूड पैटर्न क्वेश्चन. मतलब इसके लिए बेसिक इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड जो होता है. अच्छा, यहां तक एक क्वेश्चन बन गया, बात खत्म हो गई. क्या ऑड है? ऑड इवन करके भी क्वेश्चन बना सकते हैं इसका, यस और नो? क्योंकि ये सब क्या है? ड्यू टू द एनोमली ऑफ द किडनी, मैल फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, है ना, एक्वायर्ड डिसऑर्डर ऑफ अ पर्सन इंडिविजुअल. लेकिन वो दोनों बीमारी जो यूरिन से रिलेटेड ही है, किडनी के फंक्शन से, बॉडी के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, बट द ओरिजिन इन अ जीन पूल, किसी भी पॉपुलेशन में वो दोनों बीमारी फ्लोट करती है, इनहेरिट करती है विद इन द फैमिली बाय फॉलोइंग सम पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस. दे आर ऑल ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स. कैसे डिसऑर्डर्स हैं वो? बस यही मेंशन करना था इसमें कि एल्केप्टोन्यूरिया हो चाहे फिनाइल कीटोन्यूरिया हो, बोथ आर autosomal recessive genetic disorder. इसके लिए भी यही स्टेटमेंट है
क्रोमोसोम नंबर 3 और ये क्रोमोसोम नंबर 12 से रिलेटेड है। यानी जो डिफेक्टिव जीन है, सिंगल जीन डिफेक्ट, सिंगल जीन डिफेक्ट, ये दोनों एक एक जीन जो कि क्रोमोसोम नंबर 12 और 3 पे मौजूद है, और वो ड्यू टू म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, माइक्रो म्यूटेशन से डिफेक्टिव होने के बाद रिजल्टेंट क्या होगा? एब्सेंस ऑफ एंजाइम। उस एंजाइम के वजह से होमोजेंटेसिक एसिड, जो बॉडी का ही एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, लेकिन बस ड्यू टू द एंजाइम मेटाबॉलिक ब्लॉक, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एंजाइम अवेलेबल नहीं है, होमोजेंटेसिक एसिड आगे नहीं बढ़ पाता, और वो कंज्यूम होने की जगह क्या होगा? देयर इज नो वे पाथवे टू कंज्यूम इट, और वही एक्यूमुलेट होने लगता है, एक्यूमुलेट्स as L-capton. यूरिन टर्न्स ब्लैक। ब्लैक बोलने के लिए है मेडिकल साइंस में, उसे है ना कोको कोला कलर कहते हैं। When being kept in the bright sunlight around 12 to 1 o'clock in the noon time, such a patient who has been diagnosed by any doctor, any expert, so just for a mere check, यही तरीका है उसको पता लगाने का। The urine being collected और उसको रख दिया जाता है, it turns turbid, है ना, मटमैले रंग का पहले हो जाता है, और ब्राइट सनलाइट में जो है ऑक्सीडाइज होके इट टर्न्स ब्लैक कलर या कोको कोला कलर हो जाता है वो। दैट्स द साइन ऑफ द डिजीज एल्केप्टोन्यूरिया। क्लियर? तो इसके बारे में यही याद रखना है मेन। एंड फाइनली अगेन ओवर हियर, एज द नेम फिनाइलकीटोन्यूरिया, फिनाइल एलानिन जो एक रेगुलर अमीनो एसिड है, और चैप्टर के शुरू से ये कंसेप्ट आया था, एनी अमीनो एसिड विच इज नॉट इन यूज, है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्पोज होने जाता है, बट डिस्पोज नहीं हो पाता ड्यू टू द लैक ऑफ एंजाइम्स, टर्न्स इनटू वही कीटोन बॉडी। एंड व्हाट इज द साइन? यूरिन टर्न्स ग्रीन व्हेन ट्रीटेड विथ फ्लेरिक, है ना, फेरिक क्लोराइड जो है। तो लेबोरेटरी टेस्ट है, यूरिन टर्न्स ग्रीन इन कलर। तो मेन एस्पेक्ट इसमें यह है कि फिनाइल एलानिन मेटाबॉलिज्म ब्लॉक होता है, इसमें टायरोसिन, एक्चुअली टायरोसिन अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म चलता है, और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होमोजेंटेसिक एसिड बनता है। ये शरीर के लिए एक टॉक्सिक प्रोडक्ट नहीं है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसको आगे इस्तेमाल होना था लेकिन ना होकर, क्यों? क्योंकि एंजाइम नहीं है उसको आगे, होमोजेंटेसिक ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं है जो उसको कैटाबोलाइज करे, आगे मेटाबोलाइज कर सके। रिजल्टेंट वो आगे यूज अप नहीं होता कहीं, और शरीर में एल्केप्टॉन्स क्रिस्टल्स जमा होना शुरू होते हैं विच एक्सक्रीटेड इन यूरिन, एंड यूरिन टर्न्स ब्लैक, दैट्स द साइन। तो ऐसे लोगों को जो है थ्रू आउट लाइफ रेड मीट यानी प्रोटीन डाइट इनको जितना कम ले सके मैनेज करके ही, कोई इलाज तो और है नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, पेट में दर्द रहता है, बुखार आ जाना, उल्टी, नॉर्मल सिम्टम्स कभी कभी ज्यादा रहता है हफ्ते भर, फिर ठीक हो जाता है ये, लेकिन थ्रू आउट लाइफ ये दिक्कत रहेगा। एल्केप्टोन्यूरिया एंड फिनाइलकीटोन्यूरिया, so these are those anomalies of urine. Now before I move to the next part, that is what is uremia, before that I will talk about the mixturation reflex. But point to be noted, इन सारे एनामोलीज में एक बात कॉमन है,
कुछ ऐसा चीज जो कि यूरिन में नहीं होना चाहिए वो है और ज्यादा है, मतलब होना ही नहीं चाहिए, ये सब फिल्टर आउट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन होता है और रिजल्टेंट कॉम्पोजिशन बिगड़ता है, इज अ साइन ऑफ सम और आइदर डिसऑर्डर्स एंड सिम्टम्स प्रिवेलिंग इन द बॉडी। लेकिन यूरेमिया इज जस्ट ऑपोजिट। यूरिया तो होता है यूरिन में, बट वी हैव द फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग इट। क्या करना? रिटेन करना उसको कुछ हद तक। दैट्स अ साइन ऑफ ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि हमें अपने शरीर का दो चीजें मेंटेन करना है। वी हैव टू अलाउ एंड एक्सक्रीट, दैट्स द रोल, होम्योस्टेसिस, एंड दैट रिटेंशन गिव्स पीएच एंड ऑस्मोलैरिटी। यूरिया को हम 50 ग्राम तक दिन भर रिटेन करते हैं, 30-35 ग्राम निकाल देते हैं, ठीक है, इतना ही होना चाहिए। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूरेमिया? यूरेमिया इज लो अमाउंट ऑफ यूरिया, लो अमाउंट ऑफ इन यूरिन, जबकि इन सब में प्रेजेंस एंड मोर, लेकिन उल्टा। या फिर डेफिनेशन एक्चुअली जो मोस्ट प्रिविलेंट और पॉपुलर है यूरेमिया के लिए, हाई अमाउंट ऑफ यूरिया इन ब्लड, हाई अमाउंट ऑफ यूरिया इन ब्लड। तो उस प्रेजेंटेशन के साथ, एंड सच अ पर्सन हु इज बीइंग डायग्नोस्ड विद यूरेमिया कंडीशन रादर नॉट फिजियोलॉजिकल, इट इज बिकमिंग टर्निंग आउट एज अ डिसऑर्डर, गिविंग अ साइन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। क्या बोलते हैं उसको? तो जो रीनल एक्यूट फेलियर का ये साइन है, और सच अ पर्सन नीड्स अ मेडिकल असिस्टेंस, सब्जेक्टेड टू अ मेडिकल असिस्टेंस। अब वो खुद अपने नेचुरल डायलाइजर किडनी पर रिलाय नहीं कर सकता, hence his or her body must be subjected to a filtration of body fluid, that is blood mainly, outside the body through a chamber, through a dialyzing unit which is acting as an artificial kidney. That's the logic. तो उस बात को डिस्कस करने से पहले a short discussion on what is micturition reflex. What is micturition reflex? अब इसका मैं थ्योरी बहुत छोटे फॉर्म में लिखवाऊंगा, बहुत ही कंसाइज वे में, क्योंकि मेन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स योर होमवर्क कि घर पे जाके आप एनसीईआरटी थॉरोली उस पैराग्राफ को पढ़ें और डायग्राम के साथ कोलैबोरेट करके आप याद करें। सो द प्रेजेंटेशन बिगिंस लाइक दैट। As usual, human nervous system represented by the position called CNS, central nervous system, occupied by the head region and the trunk. Head region is occupied by brain, और ब्रेन का इतना पोर्शन वॉलेंट्री है, यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और इतना पोर्शन क्या है? एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा इंक्लूडिंग सेरिबेलम, क्योंकि सेरिबेलम जो दिन भर थ्रू आउट 24 आवर्स गिव अस अ गायरोस्कोपिक इफेक्ट। व्हाट इज दैट गायरोस्कोपिक इफेक्ट? कि वो एक अनकॉन्शियस विदाउट विल हमेशा नजर बनाए रखता है हमारे बॉडी के बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम पर। हमें एहसास भी नहीं रहता, आई एम मूविंग थ्रू आउट, ऐसे मूव कर रहे हैं आप, नोडिंग योर हेड। वी ऑल आर एक्सपीरियंसिंग स्टैटिक एंड काइनेटिक बैलेंस। कौन सा बैलेंस? उसके लिए रिसेप्टर कान में मौजूद है, लेकिन रिसेप्टर्स जो कान में मौजूद हैं, व्हाट देयर रोल इज? मैकुली लेयर जो होते हैं, लिथोरिया एंड अदर लेयर्स, उनका काम है कि उस सेंसेशन को वो सेरिबेलम तक पहुंचाते हैं। तो ये पूरा मिड ब्रेन, फोर ब्रेन का सिर्फ हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन और पूरा हिंड ब्रेन, ब्रेन का ऑटोनॉमिक नर्वस डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। एंड सिमिलरली फ्रॉम ओवर हेयर, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड 85% बॉडी के इंटरनल ट्रंक में मौजूद जितने भी विसरल इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट दे आर एवरी टाइम वर्किंग। यस और नो? सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो 85% वो एएनएस के लिए काम करता है, एंड 15% एसएनएस यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो उसके पाथवेज है, वो सब नर्वस सिस्टम में बताएंगे आपको। फाइनली माय कंक्लूजन इज कि आज हम देखने जा रहे हैं द एक्ट ऑफ वॉइडिंग, फिजिकली वॉइडिंग आउट द स्टोर्ड यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर।
तो कैसे स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेता है और वही एक्ट ब्रेन कब डिसीजन लेता है, दोनों का ही पार्टिसिपेशन है। एवरीवन, ये सेटअप समझ में आ गया सबको? नाउ ये फैन किसने बंद किया? चालू करो। हु इज द रेप्टाइल ओवर हियर? जल्दी चालू करो। अभी मैंने टैक्सोनॉमी पढ़ाया नहीं है। So last day, if I remember, you have gone through that precise histology of this portion, where especially urinary bladder, you have seen how it is well acquainted. उसमें supply, उसमें arrangement मौजूद है to entertain the urge of urination, to entertain the. So again, the question arises, this being the bladder wall, which is being occupied by some special stretch receptors. Stretch receptors. So what happens as soon as the urinary bladder happens to occupy with urine, and that volume is something around 250 to 300, जैसे इस रेंज पे पहुंचता है, soon the expanding, the inflating bladder, जो श्रंखन था, एम्प्टी था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, वो स्ट्रेच होगा, एंड रिजल्टेंट स्मूथ मसल्स जो है ड्यूट्रोसर मसल्स, वो स्ट्रेच होते हैं, और उनमें मौजूद ये स्पेशल है ना, जो अपने स्ट्रेच रिसेप्टर, प्रेसो रिसेप्टर्स कैटेगरी के स्ट्रेच रिसेप्टर्स मौजूद हैं, दे सेंड सिग्नल टू दी स्पाइनल कॉर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? सी दिस इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन, एवरी हियर एंड देयर जो मूवमेंट चलता रहता है। यहां मौजूद अंदर इंटरनल स्पिंक्टर्स, कौन से स्पिंक्टर्स? तुरंत उनको ओपन कर देते हैं। पॉजिटिव मतलब स्टिमुलेशन पहुंचा तुरंत, क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली विदाउट विल अपना डिसीजन ले लेते हैं, विदाउट डिस्टर्बिंग। हाँ, उसने उस अर्ज को असेंडिंग ट्रैक्ट से, थैलेमस से गुजरते हुए, कहां से गुजरते हुए? हाइपोथैलेमस के यहाँ रिले सेंटर है, हायर सेंटर्स तक उस अर्ज को पहुंचा दिया, लेकिन खुद ने अपना डिसीजन लेके इसको खोल देते हैं। बट स्टिल ह्यूमन डजंट परफॉर्म द एक्ट ऑफ वॉइडिंग द यूरिन। क्यों? क्योंकि अभी भी क्या मौजूद है? एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्पिंक्टर्स। आ रहा है सबको समझ में? एवरीवन, ये अब स्टिल क्लोज, क्योंकि इसका कंट्रोल वॉलेंट्री है। इफ यू रिमेंबर, इट इज voluntary, and still voluntary decision making under the control of ANS of brain, ANS of, ये तो ANS of spinal cord के कंट्रोल में था अंदर। ये लास्ट डे मैंने ऐसे लिखवा दिया था, आज मैं प्रूफ करूंगा। ठीक है, वॉलेंट्री है और ANS ऑफ ब्रेन के कंट्रोल में। तो ब्रेन के हायर सेंटर्स तक डिसीजन दो तरह से लिया गया है, या तो पास करना या ना करना। So that emotional status of either doing and performing that privacy act to be conducted or not, ब्रेन ने डिसीजन लिया कि इसको पास करना है, यानी नॉर्मल कंडीशन एक्सपीरियंसिंग बाय द बॉडी। सबको मेरी बात आ रही समझ में? तो वो रिले हो जाएगा। अब वो रिले कैसे होगा? वो रिले होगा बाय द ओनली नर्व, and that is parasympathetic division। that is, जबकि एक स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलेगा, है ना, स्पाइनल, क्योंकि ये तो इसका नेचर क्या है कि इसमें सारे जो नर्व्स है वो कैसे होते हैं? पैरासिम्पैथेटिक। बॉडी के सारे इंटरनल बिलो द नेक
जितने भी हमारे विसरल एक्शंस हैं, जब ब्रेन उसको किसी तरह का मॉड्यूलेशन करना चाहता है वो वेगस नर्व के थ्रू करता है नॉर्मल कंडीशन में। किस कंडीशन में? क्योंकि लिखा ही है ना मैंने पीएसएनएस। ये तो एक्चुअल पाथवे बताने के लिए डायग्राम है। और स्पाइनल कॉर्ड से एक अलग से नर्व जाएगा अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, दैट विल रिप्रेजेंट एसएनएस। तो अल्टीमेटली देखिए क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट क्या है, इसको नर्वस सिस्टम का भी क्वेश्चन मान सकते हैं। एक तरफ लिखे पीएसएनएस, दूसरी तरफ एसएनएस। सबसे पहले पीएसएनएस काम कर रहा है तो कंडीशन क्या होगा? नॉर्मल। और एसएनएस काम कर रहा होगा तो इमरजेंसी। पीएसएनएस नॉर्मल सिचुएशन में किस रिफ्लेक्स को वर्कआउट कराएगा? वॉइडिंग द यूरिन। यानी मेनली आपको क्या याद रखना है आज के बाद कि मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स यानी वॉइडिंग द यूरिन किस कंट्रोल, किस डिवीजन के अंडर है? एएनएस। एएनएस की भी किस में? पैरासिम्पैथेटिक, क्योंकि दैट्स अ नॉर्मल डिसीजन टेकन, द यूरिन कैन बी पास आउट। और यही स्टोरेज रिफ्लेक्स उल्टा पास नहीं करना है, इट्स अ साइन ऑफ इमरजेंसी दैट प्राइवेट एक्शन कुडंट बी परफॉर्म्ड। हेंस नेग्लेक्ट कर देना, उस अर्ज को यहीं के यहीं खत्म कर देना, दोबारा थैलेमस उसको ऊपर तक नहीं पहुंचाता और कुछ समय के बाद वो मैसेज आना बंद हो जाता है क्योंकि स्पिंक्टर अगेन होल्ड डाउन, ये नहीं खुलेगा जब तक ये काम ना करे। तो स्टोरेज रिफ्लेक्स, इमरजेंसी। फाइनली क्या होगा? नॉर्मल सिचुएशन मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स में दो चीजें होनी है। सबसे पहले तो उसका सप्लाई कहां आएगा? ब्रांच बना के डिट्रोसर मसल्स में, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर। मिक्सचुरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर एंड ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल, क्योंकि ये तो खुला ही हुआ है इंटरनल जिसने स्पाइनल कॉर्ड ने, लेकिन कौन बंद था? एक्सटर्नल, जो किसके वॉलंटरी कंट्रोल में था? ब्रेन के हायर सेंटर्स। फिर उसको उसने रिले कराया अपने ऑटोनॉमिक डिवीजन से। आया सबको समझ में? एवरीवन? तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर एंड ओपनिंग ऑफ एक्सटर्नल स्पिंक्टर exhibit what? Mixturation reflex brought about by which division of CNS? Parasympathetic nervous system under, और जस्ट इसका ऑपोजिट स्टोरेज रिफ्लेक्स, रिलैक्स्ड ब्लैडर। आ रहा है सबको समझ में? एंड क्लोज्ड एक्सटर्नल स्पिंक्टर। ये ओपन हो गया लेकिन ये क्लोज्ड ही रहेगा अगर इमरजेंसी है, एसएनएस से इंपल्स आता है, ब्रेन ने डिसीजन लिया नॉट टू वॉइड द यूरिन। तो इस पूरे डिस्कशन का अंडर द टॉपिक मिक्सचुरेशन, उस पैराग्राफ को अब जाके आप पढ़ के देखिए, आपसे बनेंगे क्वेश्चन। बस ये पाथवे मेन समझाने के लिए था, मेन कंसेप्ट था। लास्ट क्लास आपने देखा कि यहाँ क्या अरेंजमेंट है। तो पीएमटी का आया हुआ क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंगली आंसर, व्हाट विल हैपन इफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स रिमूव्ड, है ना? मिक्सचुरेशन विल नॉट अकर। लेकिन कुछ किताबों में मिक्सचुरेशन विल कंटिन्यू, वो इसलिए दिया है कि अब जिससे भी सॉल्व कराया डिबेट हुआ होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली मेडिकल साइंस में कुछ प्रॉब्लमों का इलाज ढूंढ लेते हैं ना। कैथेटर लगा के इधर पुश करके रखते हैं तो यूरिन ड्रेन आउट होना, क्योंकि वो कैथेटर यहां तक पहुंचा देते हैं तो स्पिंक्टर्स ब्रॉड हो जाते हैं, तो यूरिन आता रहता है जाता रहता है, रिसेप्टर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहते। अरे आ रहा है समझ में? और व्यक्ति खुद फिर इंटेंशनली भी क्या है, अपने एब्डोमिनल और डायफ्राम से पुशिंग एक्शन। तो आपने चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पढ़ा है, व्हाट इज द नॉन रेस्पिरेटरी रोल ऑफ डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम प्लेज अ रेस्पिरेटरी रोल, ये हर कोई जानता है। व्हाट आर द नॉन रेस्पिरेटरी रोल ऑफ डायफ्राम? टू एंटिसिपेट, है ना? टू एंटिसिपेट किसको सपोर्ट करना? दो तरह के अर्ज को, बॉवेल मूवमेंट और मिक्सचुरेशन। बॉवेल मूवमेंट को लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि वो तो एक फ्लैप जैसा ऐसा पार्टीशन है, तो एनी पर्सन व्हेनेवर क्या बोलते हैं डेफिकेट, है ना, जब भी वो डेफिकेशन में सैनिटरी प्लेस पे बैठता है तो एब्डोमिनल मसल्स पे प्रेशर पड़ता ही है और खुद वॉलेंटरी जो है प्रेशर जनरेट करते हैं। तो बॉडी ट्रंक से इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पे कैसे प्रेशर बनता है? बाय डायफ्राम। बाय, सबको मेरी बात आ रही समझ में? ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्राम इन मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स? हिकअप्स, स्नीजिंग, अरे यस और नो, यॉर्निंग,
यॉर्निंग जमा ही लेते हैं ना भाई, CO2 लेवल इतना बढ़ गया कि नॉर्मल एक्सपिरेशन से एनफ नहीं है, तो मुंह फाड़ फाड़ के कैसे हम, yes or no? So that's an very awkward situation, but then we exhibit it, which is not under our control. अपने आप ब्रीदिंग जो है मॉडिफाई हो जाता है. तो दैट्स आर अदर, उन सब के पार्ट्स कहाँ मौजूद है यहाँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ मौजूद है, वॉमिटिंग सेंटर, पेरिस्टालसिस, ये सब यहाँ मौजूद है. सबको मेरी बात आ रही समझ में कि एक्चुअली वो सब विदाउट विल है. जब आपको क्या बोलते हैं यॉर्निंग आएगा तो आएगा, आप तो ये तो आपका खुद का विल है, आपके अपने जेनरोसिटी है कि आप कहां बैठे हैं एंड यू डू नॉट वांट टू गो थ्रू दैट सिचुएशन ऑफ एक्सप्रेशन, देन यू ट्राई टू होल्ड इट, लेकिन वो एग्जैगरेट होगा, आंखों से पानी आ जाएगा. अरे मेरी बात है समझ में कि सामने तीसरी बेंच पे बैठे सर मुझे देख लेंगे ऐसे मुंह फाड़ते हुए, तो पीछे वाला बड़ा लेट के कर सकता है, लेकिन सामने थोड़ा सोच रहे नहीं नहीं इतना भी अच्छा नहीं लग रहा. अरे सबको मेरी बात आ रही समझ में? दैट्स आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी जेस्चर्स, लेकिन टॉक वेरी नेचुरल व्हेन वी डिस्कस एनी सच थिंग. तो ये एक मल्टीफेसेटेड इवेंट है देखा जाए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, क्योंकि बाय द एज ऑफ 2.5 years तक ये सारा कंट्रोल यहीं तक था, ब्रेन का नहीं था यहाँ कोई रोल. बट स्लोली बाय टॉयलेट ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर सोशल डेवलपमेंट, वॉलेंट्री कंट्रोल ओवर मिक्सचुरेशन अराइज. यस और नो? क्योंकि छोटे बच्चों में मैंने लास्ट क्लास भी कहा था, बाय सिंपली हिजिंग साउंड से ही जो है बीपी बढ़ जाएगा. बच्चों में ऐसी थोड़ा कौतूहल रहता है, ऐसे ऐसे नचा रहे उसको, हो. Now the next topic is very important. What is uremia? What is uremia? It's a state of physiological disorder characterized by increase of urea level in blood. It's a state of physiological disorder characterized by increase of urea level in blood. It's a diagnostic feature of acute renal failure. A person is characterized by, क्वेश्चंस में इस तरह के ऑप्शंस रहेंगे उम्मीद किया जाता है, इसलिए ध्यान दीजिए. We are coming to acute renal failure and then how we will conclude by two types of medical assistance. One is temporary, another is permanent. One is temporary and another is permanent. But the question is, previously with the beginning of the class today,
थोड़ी देर पहले ही हमने इस तरह से देखा यूरिन की कॉम्पोजिशन. यूरिन विच इज अ प्रोडक्ट of a matter of chance factor of choosing good and bad from it and thereby making it GF to urine around 4 times more concentrated. ये जो बॉडी का exhibited nature है which actually resembles the ability to excrete अनवांटेड वेस्ट. चैप्टर के शुरुआती पैराग्राफ में साफ शब्दों में कहा गया था there are certain substances which are in daily use but depending on the metabolic situation of the body whether to be used or not, surplus and unwanted substances thereout become after a certain time they are destined. उनके जो बोलते हैं ना नियति, उनका नियति शरीर में आगे चल के क्या खत्म होता है कहां जाकर कि वो अनयूज्ड रह जाते हैं और अनयूज्ड एक्युमुलेट होके जिस तरह की टेंडेंसी. इस तरह से जो चैप्टर चालू हुआ था. और यूरिया हमारा मेजर वेस्ट, टारगेटेड वेस्ट है जिसको शरीर से निकाला जाता है. लेकिन ऐसा क्या कंडीशन होता है कि वही यूरिया जिसको हम रिटेन करके कुछ और चीजों को भी हासिल करते हैं लेकिन जरूरत से ज्यादा रिटेन हो गया, यूरिया लेवल ब्लड में इंक्रीज हो गया, दैट विल क्रिएट अ डिसऑर्डर स्टेट ऑफ फिजियोलॉजी. ए होम्योस्टेसिस, मेटाबॉलिक ब्लॉक क्रिएट करेंगे. द क्वेश्चन इज इट्स अ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर. अचानक से किसी व्यक्ति का रीनल किडनी फंक्शनिंग खत्म हो गया है, नहीं कर रहा है, इसका वो रिजल्टेंट इंपैक्ट है. तो अ पर्सन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एसिडोसिस. नाउ दिस इज द टेक्निकल टर्म. फॉल इन पीएच लेवल. ब्लड का पीएच मेंटेन करने के लिए यूरिया को रोका गया था, जरूरत से ज्यादा रुक गया तो यूरिया विल इम्पार्ट व्हाट, एसिडोसिस. सबको आ रहा है समझ में, क्योंकि उसमें अमीनो ग्रुप होता ही है और कीटोन है ना यूरिया के कंपोजिशन में. तो वो मेटाबोलाइज होके जो है एसिडिक नेचर देता है. तो एसिडोसिस इज द मेन फैक्टर. और एसिडोसिस के कारण क्या होगा, एंजाइम डीनेचुरेशन. एंजाइम मतलब व्यक्ति जो एक अनहेल्दी और डिस्कंफर्ट जोन में आ जाता है, कोलैप्स हो जाता है, चक्कर आके गिर जाएगा. वो तो हॉस्पिटल में जाके उसको भर्ती कराया गया और फिर ब्लड टेस्ट और सब चीजों को डायग्नोस करके डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से जो है अलग अलग तरह के टेस्ट करने के बाद कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इट्स अ साइन ऑफ रीनल फेलियर. दैट्स अ प्रैक्टिकल सिचुएशन. डायग्नोस्टिक क्लिनिकल एप्लीकेशन अलग है. लेकिन हम जब इसको थ्योरी में पढ़ रहे हैं तो वी आर क्रिएटिंग अ कंडीशन कि ऐसे एक व्यक्ति जिसके अंदर ऐसा कुछ हो गया, पिछले 15-20 दिन में 2 बार कोलैप्स हुआ, ध्यान नहीं दिया, थोड़ा बहुत वो करके ले आया, फिर घर ले आया, फिर बीमार है, उठ ही नहीं पा रहे, क्या हो गया अचानक से, तब जाके सामने आएगा पीएच फॉल्स, एसिडोसिस, एंजाइम डीनेचुरेशन. मेटाबॉलिक ब्लॉक्स बॉडी में आना शुरू होंगे, है ना, शरीर काला पड़ने लगता है. मेन बात जो यहां मैं लिखने जा रहा हूं, ओलिगोन्यूरिया. ओलिगो, व्हाट इज दैट, passage of very less amount of urine. That is something 50 to 250 ml. Can you imagine? Milliliter. दिन भर में सिर्फ 50 ml यूरिन. दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ दैट प्रेजेंटेशन ऑफ रीनल फेलियर. ज्यादा से ज्यादा 250 वाटर इनटेक की वजह से थोड़ा बहुत. सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो ब्लड रिपोर्ट तो ये सब चीजें किसी और बीमारी में भी आ सकते हैं, बट हर बीमारी का एक फाइनल डायग्नोस्टिक फीचर होता है जो बाकी सारी बीमारियों से हटके उस बीमारी की पहचान कराते हैं. सो व्हाट इज द मेजर, है ना, जिसको मेडिकली इनकंसिस्टेंस कहते हैं, ओलिगोन्यूरिया को, है ना, इनकंटिनेंस वर्ड यूज करते हैं मेडिकल साइंस में. तो एसिडोसिस, एंजाइम डीनेचुरेशन, मेटाबॉलिक ब्लॉक, ओलिगोन्यूरिया. Now the person is diagnosed with what actual disorder, with the anomaly of the body and the urine. मैं यहां पर increase urea level in blood, यहीं क्या लिख सकते हैं, low level of urea in, क्योंकि जो हेडिंग चल रहा था वो एनामोलीज ऑफ यूरिन था, ब्लड की एनामोली नहीं है. तो यूरिन में यूरिया कम है तो सॉल्यूट कम, बॉडी से पानी भी कम निकलेगा. आर यू गेटिंग दैट complete parameter and the statistics, yes or no?
यूरिया को निकालने के लिए तो वाटर चाहिए था, जब यूरिया ही कम निकल रहा है तो वाटर भी कम जाएगा, और रिजल्टेंट जो जिस तरह से रुक रहा है, फाइनली बॉडी के अंदर सारे कंडीशंस एंड द पर्सन विल फाइनली वीकनेस एंड कन्वल्जन्स, अपने पैर पे खड़ा ही नहीं रह सकता, वो बिस्तर पकड़ लेता है, वो तो कांट डू दी नॉर्मल डे टू डे वर्क, फ्रॉम दैट डे वो बिस्तर पकड़ा रहेगा, कन्वल्जन्स, चक्कर, उठने आएगा चक्कर आ जाएगा, क्योंकि बॉडी में वही है ना, ब्लड द रिवर ऑफ लाइफ, उसका फ्लो, उसका पीएच, उसका जो टेम्परेचर, बहुत सारे फैक्टर्स सब डिस्टर्ब है. सो व्हाट इज नाउ एक्सपेक्टेड, such a person is now subjected to an temporary medical assistance of blood filtration outside the body. Such a person is now subjected to a temporary medical assistance of blood filtration outside the body through a device dialyzing unit. The technique is called hemodialysis. Hemodialysis. The principle of dialysis is having a device called dialyzing unit made up of dialyzing chamber, and the dialyzing chamber contains cellophane tube which is by nature porous and semi permeable. और जो डायलासेट है, बस पूरा पैराग्राफ को पढ़ के यही तो मेन बात याद रखना है, बाकी मैं अभी प्रेजेंटेशन तो बना ही रहा हूं. But what you have mainly remember regarding solving the question is कि उसमें तैयार किया हुआ ये यूनिक फ्लूइड जो डायलासेट है, उसका दो नेचर है, उसको ऐसा तैयार किया जाता है हर बार एक पेशेंट के लिए, whoever the person subjected to such a type of technique, उस प्रोसेस के 2 घंटे पहले बुलाकर, है ना, द पर्सन इज बीइंग सब्जेक्टेड टू सम टेस्ट कि उसकी बॉडी के अंदर ब्लड की फिलहाल क्या कॉम्पोजिशन है, उसको देखते हुए इसको तैयार किया जाता है. और इसको ऐसे तैयार किया जाता है कि इट इज आइसोटोनिक टू न्यूट्रिएंट्स, वर्ड लिख रहा हूं, मतलब ऑल रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस जो ब्लड में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. तो ये फ्लूइड उन चीजों के लिए कैसा रहेगा, आइसोटोनिक. और गौर करिएगा, हाइपोटोनिक टू वेस्ट, हर तरह का वेस्ट,
नाइट्रोजनस वेस्ट अंडरस्टूड है, बट वेस्ट, उसके लिए वो हाइपोटोनिक होगा। अच्छा, ये बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला हिस्सा है मतलब इस टॉपिक का। थोड़ी देर के लिए अभी तो याद हो जाएगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आप 5 से 8 9 महीने बाद जब आप पेपर के हॉल में बैठे और मान के चले क्वेश्चन आ गया फॉर अ वाइल, तो इसके लिए थोड़े कुछ चीजें होती है ना कि कुछ चीजें हमें हमारी मेमोरी बेस्ड होता है और कुछ चीजें होती है कंसेप्ट की, जो मैं हमेशा बात करता हूं। इसलिए तो मैंने आपको वो सारी चीजें पहले ही समझा दिया था, ऑस्मोलैरिटी, आइसोटोनिसिटी, हाइपर, कौन किसके रेफरेंस में, क्योंकि ये सब रिलेटिव टर्म्स है। तो बाकी डायग्राम से भी समझ में आएगा, न्यूट्रिएंट्स के लिए आइसोटोनिक और बाकी वेस्ट के लिए हाइपोटोनिक, क्योंकि ब्लड जिस सेलोफेन ट्यूब से गुजरेगा, ब्लड कैसा है, कंसंट्रेटेड विथ व्हाट, वेस्ट, और उसके चारों ओर जो मीडियम होगा वो कैसा होना चाहिए, यानी लेस लेस सॉल्यूट मोर वाटर, तभी तो जो सब्सटेंसेस हैं, सबको आ रहा है समझ में, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू, इसलिए हाइपोटोनिक टू द वेस्ट। इसके अलावा अदर एसेसरी, वो तो पूरे डायग्राम से समझ में आएगा। डायलिसिंग चैम्बर के अलावा अदर एसेसरीज, जिसमें रोटर, थर्मोस्टेबिलाइजर, ये सारे गैजेट्स भी इसके साथ रहते हैं। ये लिख लिया सबने? A person exhibiting the diagnostic features of uremia is being subjected to the technique procedure of dialysis, where first of all the blood is collected from radial artery. रेडियल आर्टरी से ब्लड लेंगे या ब्रैकियल आर्टरी से लेंगे, है ना, जहां हार्ट के नजदीक प्रेशर से ब्लड मिले, दैट्स द रीजन। रेडियल आर्टरी, आर्टरी से ब्लड हमेशा जो है पुल आउट किया जाता है, दैट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। देन इट गो थ्रू द टेम्परेचर स्टेबलाइजर, क्योंकि ब्लड का एक सर्टेन टेम्परेचर होगा जो बॉडी टेम्परेचर, उससे उसको लो करके एंटर कराना। ज्यादा टेम्परेचर पूरा 37 नहीं, उससे कम 3-4 डिग्री कम एंटर कराया जाता है। और एंटर कराने से पहले, नाउ दिस इज मियर प्रेजेंटेशन, एक मशीन रोटर है और उससे यहां पर ऐड किया जाता है, क्योंकि नेचुरल हेपरिन जो इसमें मौजूद होगा वो ट्यूब के अंदर आते से एयर एक्सपोज होते से इनएक्टिव हो जाता है, एंटीकोगुलेंट, तो ब्लड तो जम जाएगा। सबको आ रहा है कंसेप्ट? इसलिए हेपरिन लाइक, एक्चुअल हेपरिन नहीं होता है, हेपरिन लाइक एंटीकोगुलेंट इज एडेड, वही चिलेटिंग एजेंट, ऑक्सलेट वगैरह सब, एंट्रासिट्रेट, ऑक्सलेट, चिलेटिंग एजेंट जो कैल्शियम को बाइंड करके रखे जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म ना हो। आ रहा है लॉजिक समझ में? बाकी व्हाट इज ब्लड कोआगुलेशन, क्या कंसेप्ट है, वो आपको सर्कुलर सिस्टम में बता देंगे, लेकिन यहां अभी फिलहाल आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड कि हेपरिन लाइक सब्सटेंस यहां क्यों ऐड किया जाता है, टू प्रिवेंट द कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड इन द डायलाइजिंग
चैम्बर। सबको आ रहा है समझ में? अच्छा, फिर उसको एंटर कराया जा रहा है थ्रू दैट हाईली कॉइल्ड ट्यूब। Now this is that dialyzing chamber having the cellophane tube, porous and permeable. Porous and रेड कलर का इस्तेमाल करते हुए ब्लड बीच गुजर रहा है इसके अंदर से, है ना? ब्लड इज मूविंग फ्रॉम हेयर। जितना ज्यादा कॉइलिंग और लेंथ, यहाँ तो सिर्फ मैंने इतना ही दिखाया, बहुत ज्यादा कॉइल्ड और लेंथ होता है कि उसको आराम से धीरे धीरे पास हो। जितना गुजरेगा सरफेस एरिया एक्सपीरियंस करेगा उतना ही एक्सचेंज होगा। दैट्स द सेम कंसेप्ट। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका, डायलाइजिंग चेंबर इस यूनिट में कौन सा कंपोनेंट अल्ट्रा फिल्टर मेम्ब्रेन या ग्लोमेरुलस या अल्ट्रा फिल्टर मेम्ब्रेन की तरह काम करता है? आंसर होगा सेलोफेन ट्यूब। सबको आ रहा है समझ में एवरीवन? और उसके चारों ओर जो फ्लूइड होगा एनवायरमेंट फ्लूइड का, दैट इज डायलासेट, दैट इज डायलासेट। एंड यू आर ऑलरेडी वेल अवेयर कि डायलासेट का दोनों ही नेचर है, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक ग्लूकोज और सारे रिक्वायर्ड मटेरियल जिनको 100% रोकना है मोर और लेस करके, उन सब के लिए कॉम्पोजिशन आइसोटोनिक। और हाइपोटोनिक वेस्ट यहां कम, वेस्ट यहां ज्यादा, तो पास हो जाएगा। लेकिन होते होते क्या होना है, आफ्टर सर्टेन टाइम द डायलासेट विल बिकम हाइपरटोनिक। क्या बन जाएगा? तो इसलिए एक तरफ से फ्रेश डायलासेट ऐड होता है और एक तरफ से ओल्ड डायलासेट, ओल्ड रिमूव होता रहता है। ये हर 1 घंटे के भी अंदर होता रहता है, क्योंकि नॉर्मल किडनी 1 मिनट में 1 लीटर ब्लड को सप्लाई करता है, यस और नो? मतलब जो है पूरा उसका क्लीन अप करता है। यानी 5 to 6 मिनट द किडनी रिक्वायर्स टू एक्चुअली फिल्टर आउट द कंप्लीट टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। उस दिन वो स्टैटिस्टिक समझाई दिया था मैंने, एम आई राइट? लेकिन वही किडनी खराब हो जाए तो आउटसाइड द बॉडी हर 1 लीटर ब्लड को साफ करने में करीब करीब 1.25 घंटे लगता है, 1 घंटा मिनिमम लगता है। तो द वर्क्स बिकम 5 to 6 आवर्स। कितना? एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी फिर वही 5 लीटर 4.5 लीटर जो भी उसका ब्लड है उसको, क्यों? क्योंकि पूरे प्रोसेस से गुजरने के लिए जो तैयारी होती है वो भी आधे घंटे का, फिर हो जाता है उसके बाद भी इस पूरा सेटअप को डिसमेंटल करते हुए आधा घंटा लग जाता है। सो इट्स अ टाइम टेकिंग हेक्टिक प्रोसेस। So whoever the person lead a miserable life economically, by health, by mental tension states, है ना, सोशल प्रॉब्लम्स, यस और नो? क्योंकि सबसे पहले तो इसी बात को कोई एक्सेप्ट बहुत रेयर लोग कर पाते हैं कि विद लिविंग विद सम ऑफ द डिसऑर्डर एनोमली जिसका इलाज नहीं है तो बहुत महंगा है और थिंग्स गो वर्स एंड वर्स्ट, यस और नो? सबको मेरी बात आ रही है समझ में? सो देयर आर सम टेक्निकल, मैं बाकी इकोनॉमिक सोशल फैक्टर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अब देखिए, मैं हमेशा आपको सामने इन चीजों का प्रोजेक्शंस करता रहा हूं कि ये पढ़ते पढ़ते लेट अस टेक अ रेफरेंस। Refer topic AIDS. Don't die of poor monitoring. ब्लड ट्रांसफ्यूशन आ रहा है कुछ समझ में? ब्लड ट्रांसफ्यूशन अभी अभी आपने देखा, डायलिसिस एंड अनहाइजीनिक needles. So these three are those
different other ways other than unhygienic multiple sexual relationship. Most of the cases of HIV positive and AIDS patient in the society are the result of what? 90% chances are by multiple sexual relationship, which is a conscious behavior pattern, which is a mostly people die of AIDS due to a conscious behavior pattern. Explain, ये मतलब why? Options. मेरी बात आ रही है समझ में? तो उसमें क्या लिखा रहेगा? ये तीन तो लिखा रहेगा, ये तीन ऑप्शंस तो लिखा रहेगा, बट योर आंसर विल बी ट्रक ड्राइवर्स, vehicle borne disease. AIDS is a vehicle borne disease. AIDS is a, अब इसको बोलने का क्या मतलब, बोले सर गाड़ी का एड्स से क्या संबंध है, मतलब है ना, अब वो ज्यादा सोच रहे हैं, मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है. दोज हु आर बाय प्रोफेशन आउट ऑफ देयर होम एंड रिलेटेड टू कंसर्न विथ ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, अपने घर से काफी समय तक बाहर रहने का उनका जो जॉब प्रोफेशनल एस्पेक्ट है, जिसके चलते हुए दे कांट कीप अ होल्ड ओवर देयर लिबिडो, व्हाट वी कॉल से सेक्सुअल नीड ऑफ द बॉडी, हेंस दे गेट इंडल्ज इन मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स. नाउ दैट्स एन अनदर डार्क साइड ऑफ द सोसाइटी. मेरी बात आ रही है सबको समझ में? सो दैट व्हाट विल लीड टू द सिचुएशन. तो जानते हुए हैं, सब जान रहे हैं, आज अवेयर्ड है, बट स्टिल कुड नॉट ओवरकम देयर, है ना, सेक्सुअल डिजायर्स ऑफ द बॉडी, हेंस गेट इंडल्ज विथ एनी सच टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप. तो वो एक कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न है. तो क्वेश्चन पूछने का मतलब एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये टॉपिक का, कि फॉर एड्स इट इज वेल नोन सेड दैट डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस. तो इग्नोरेंस मतलब पुअर मॉनिटरिंग. तो एक्सेप्ट, तो वी आंसर एक्सेप्ट मतलब बाकी सब पुअर मॉनिटरिंग है, और ये तो कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न. सबको आ रहा है समझ में? कभी कभी होता है ना कुछ क्वेश्चंस एट अ ग्लांस नजर में ऐसा लगता है भगवान जी ने पूछा क्या है, मतलब फॉर अ वाइल, मतलब मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, आई एम टॉकिंग इन जनरल. अरे आपकी जगह ये गलती मेरे से भी हो सकती है, मैं यही तो आपको सिखाना चाह रहा हूं. दीज आर ह्यूमन एरर्स. इसका इंटेलिजेंस और आपको कितना आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है. हम एक चीज पढ़ते पढ़ते कंसेप्चुअली चीज है, जैसे पढ़ लिया, ये डायग्राम बना हुआ है, अल्टीमेटली क्या होना है, फिर देखिए ब्लड अल्टीमेटली वापस रोटर से एंटी हेपारिन क्या ऐड किया जाता है. एंटी हेपारिन इसलिए ऐड किया जाता है, मतलब जो हेपारिन लाइक सब्सटेंस है, व्हाट डू मीन बाय एंटी हेपारिन, वो एक ऑक्सिलेट सिट्रेट मॉलिक्यूल है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना है इससे पहले कि वापस शरीर में जाए. अनवांटेड कंपोनेंट है ना वो शरीर का, इसलिए उसको नलिफाई करने के लिए दोबारा एंटी हेपरिन यहां ऐड किया जाता है बिफोर एंटरिंग द ब्लड, पुशिंग इट बैक टू द बॉडी. और फिर से एक स्टेबलाइजर मशीन फिर से होगा जो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ठंडा खून निमोनिया हो जाएगा. हफ्ते में शुरू में एक दिन हो रहा है, फिर 2 महीने बाद पता चला है हर हफ्ते में 2 बार हो रहा है, 6 महीने क्रॉस हो गए, हर तीसरे दिन हो रहा है. तो एवरी टाइम बॉडी विल एक्सपीरियंस व्हाट, कोल्ड कंडीशन, क्योंकि वो ठंडा खून अंदर जाएगा. फिर शरीर को, ऐसी शरीर बीमार है, शरीर फूल जाता है, खाना नहीं खाते, लॉस बहुत, वो बहुत सी टेक्निकलिटीज है, वो तो जो गुजरता है प्रैक्टिकली वो एक अलग बात है. मैं अब वही बात है ना, मैं यहाँ पर कोई तुम्हें एमडी नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ. मेरी बात आ रही है समझ में? वी आर कमिंग टू अ कंसेप्ट. और फिर जो एंटर कराया जाता है ब्लड वेन के थ्रू, स्कियाटिक वेन. कौन सा वेन, मतलब फीमर के यहां से गुजरता हुआ टुवर्ड्स द एब्डोमेन, स्कियाटिक वेन होता है यहाँ पर, वहां से. तो बहुत हाई प्रेशर से ब्लड को पुल आउट एंड लो प्रेशर से ब्लड में धीरे धीरे एंटर करें, क्योंकि 1 घंटा लगना है तेजी से नहीं, तो इसलिए ब्लड धीरे धीरे एंटर कराया जाता है शरीर में टू मेंटेन द बीपी. मॉनिटर्स लगे रहते हैं, ब्लड प्रेशर तो फ्लक्चुएट होता ही है, फिर भी कोशिश करते हैं मेंटेन करना. दिस कंप्लीटली मॉनिटराइज्ड है ना, ऑटोमेटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से ये सब किया जाता है. भले मैनुअली एक इंसान बैठा है वहां, बट टू कीप अ चेक ऑन ऑल दिस. तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, है ना, एंड दैट नीड्स अ स्किल्ड पर्सन, ट्रेन्ड पर्सन टू परफॉर्म ऑल दीज. बट हम थ्योरी पे आ रहे हैं. थ्योरी क्या है ये आपको याद रखना है, और ये सीक्वेंस याद रखना है, जिसमें आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, वेन से एंटर कराया जाता है, कब हेपरिन ऐड होता है और कब एंटी हेपरिन. और यहाँ एक्सचेंज होने के बाद डायलासेट बिकम्स हाइपरटोनिक, हेंस देयर इज अ व्हाट, रेगुलर क्या होता है उसका सब्सटीट्यूशन. फ्रेश डायलासेट ऐड किया जाता है और ओल्ड डायलासेट निकाल दिया जाता है हर 1 घंटे के अंदर. बट रिलेटेड क्वेश्चन क्या बना, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ हीमोडायलिसिस. एक तो ये टेम्पररी है ना, कॉस्टली, टाइम टेकिंग,
है ना, मिजरेबल टेक्निक, क्योंकि हर बार वही है, शरीर में परमानेंट वो वेन प्लान लगा के रखते हैं, क्योंकि रोज थोड़ी वहां सुई लगाते रहेंगे। तो दो जगह, यहाँ थाइज में यहाँ पर बना के रखते हैं स्पेस, और वो आके उसको मशीन से आके जुड़ जाना पड़ता है। तो वॉट एवर, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आप देखिए, अब ये मशीन ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये मशीन किसी एक के लिए थोड़ी बना है कि भाई ये मशीन आज के बाद आपके लिए इस्तेमाल होगा जब तक आप जिंदा रहेंगे। ऐसे तो मुंह पे नहीं बोलते ना, मतलब या मशीन करोड़ रुपए की मशीन है। मेरी बात आ रही सबको समझ में? एंड उससे कितने अलग अलग लोगों का ब्लड गुजरेगा, भले ही देयर आर टेक्निक्स, स्टेरिलाइजेशन एक्सपर्ट्स हैं ब्लड, लेकिन सिस्टम सिस्टम इज अ मैटर ऑफ फेल। ब्लड स्टेन अंदर रह जाए और इस दौरान वो व्यक्ति किसी और के संपर्क में आके वॉट एवर, so there are chances, and it's a sign of what? Poor monitoring. रेफर द चैप्टर। मैं दो अलग अलग जगह के क्वेश्चन, इंडीड 3 चैप्टर्स, इस चैप्टर के भी क्वेश्चन, चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड एंटीजन का कंसेप्ट भी आज आपको समझा देंगे, है ना, मतलब टू द पॉइंट, मतलब हालांकि सब कुछ नहीं, वो तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम, वहां हम बात ही करेंगे अबाउट ब्लड ग्रुप्स एंड इट्स इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स का क्वेश्चन भी एक साथ कवर, आरएच फैक्टर, एबीओ ब्लड ग्रुप, एमएन ब्लड ग्रुप, 3 ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में 2 है, लेकिन 3 इसलिए क्योंकि एमएन का रेफरेंस में जब ऑप्शन में लिखा आ जाए तो क्या आपको पता होना चाहिए व्हाट इट डिफर्स फ्रॉम द अदर आरएच एंड एबीओ ब्लड ग्रुप, बस इसलिए। फिलहाल हम चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं टू एंड द चैप्टर, बट किडनी को ट्रांसप्लांट करना, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट सिचुएशन द बॉडी हैज एनकाउंटर्ड, दैट इज गो फॉर ट्रांसप्लांटेशन। तो चाहे किडनी हो या कोई भी ऑर्गन बॉडी में ट्रांसप्लांट हो, एक्सेप्ट आई ट्रांसप्लांटेशन। मेरी बात आ रही समझ में? उसको छोड़ के बाकी बॉडी में जो भी ट्रांसप्लांटेशन किसी भी फॉरेन बॉडी से अगर होता है तो उसके पीछे का एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है? दैट्स द साइंस ऑफ इम्यूनिटी। उसका आंसर यहां नहीं है, उसका आंसर है चैप्टर इम्यून सिस्टम। कौन सा? एंड इम्यूनिटी इज डिस्कस्ड विद द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और अंडर दैट टॉपिक इम्यूनिटी बॉडी का एक एक्सक्लूसिव इम्यून रिस्पॉन्स पैटर्न, सेल मेडिएटेड इम्यून, सीएमआईआर, और ग्राफ्ट रिजेक्शन का क्या आपस में रिलेशन है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा कि नहीं होगा, द बॉडी एग्जिबिट अ फिनोमिना ऑफ रिकॉग्नाइजिंग बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और जहां उसने किसी भी गिवन एलिमेंट को नॉन सेल्फ की तरह, है ना, रिकॉग्नाइज कर लेता है, जो उसकी टेंडेंसी है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज बिटवीन सेल्फ एंड, वो अपनी तरफ से गलत नहीं है, इट्स अ गुड साइन, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन रिजल्टेंट वी टुडे ह्यूमन बीइंग विद आवर मेडिकल एस्पेक्ट्स, मेडिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल हेल्थ सेक्टर में आज हमारा जो इंटेंशन है और जो हमारा एक्चुअली एम है, गोल अचीव करना, फिलहाल बॉडी के उस बिहेवियर को हम एक रिजेक्शन बिहेवियर मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? कि हम कोई चीज अपनी तरफ से ग्राफ्ट करना चाह रहे हैं, उसमें प्लांट करना चाह रहे हैं, है ना, अगेंस्ट द नेचर जाके वो परफॉर्म करना, बट इट इज बीइंग रिजेक्टेड। नाउ दैट्स अ इम्यून रिस्पॉन्स। ग्राफ्ट रिजेक्शन इज एन विच इम्यून रिस्पॉन्स?
तो व्हाट इज CMIR एंड व्हाट इज ग्राफ्ट रिजेक्शन? सबको मेरी बात आ रही है समझ में, है ना? मतलब मैं इस तरह का प्रेजेंटेशन से आपके दिमाग में ये इंप्लांट कर रहा हूं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तो बाद में होगा, पहले आप अपने दिमाग में बात को इंप्लांट करें कि मुझे पढ़ाना तो इस चैप्टर का एंड टॉपिक है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या है, लेकिन किडनी या कोई भी ऑर्गन बॉडी का, हार्ट ऑर्गन, बिटवीन टू अननोन पर्सन एक्स एंड वाई, जब भी ये सर्जरी, ये यूनिक सर्जरी एक मेडिकल प्लेटफॉर्म पे बाय एन एक्सपर्ट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन परफॉर्म्ड, तो क्या साइंस, क्या लॉजिक उसमें काम करता है, एंड हाउ वी मेक दैट रिजेक्शन एट लोअर एंड एंड ट्रांसप्लांटेशन मोर सक्सेसफुल। तो उसके पीछे का पूरा साइंस क्या है, क्या प्रिंसिपल है, कोर्स का दूसरा एक टॉपिक भी हमारा कवर हो रहा है और रिलेटेड पॉइंट भी हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो आज के बाद जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यू कुड टेक दैट रेफरेंस, ह्यूमन हेल्थ डिजीज चैप्टर अंडर टॉपिक इम्यूनिटी। बाय द एंड ऑफ द चैप्टर जहां CMIR यानी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स डिस्कस्ड है, उसी में एक प्रॉपर्टी डिस्कस्ड है, व्हाट वी कॉल ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो इसकी कहानी शुरू होती है मेजर हिस्टो compatibility complex, major histocompatibility complex. Why so? Because whenever a doctor plan to perform organ transplantation, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह कि CMIR क्या है, ग्राफ्ट रिजेक्शन का संबंध उससे क्या है, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज MHC, व्हाट इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी शब्द का क्या मतलब होता है? एक कंफर्ट जोन, एक दूसरे से मेल खाना, मतलब सिमिलरिटी एग्जिबिट करना, दैट साइंस ऑफ सिमिलैरिटी इज कॉल्ड एज कंपैटिबिलिटी। तो व्हाट द बॉडी एश्योर्स, बॉडी को क्या एश्योरेंस देना पड़ता है, तो इसको समझने के लिए व्हेनेवर अ डॉक्टर प्लान टू परफॉर्म ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अ सर्च ऑफ suitable host body as donor begins। सही बात है, वो और उसकी टीम क्या शुरू कर देता है, उसके पेशेंट एक्स के लिए एक ऐसा व्यक्ति वाई की खोज जो कि सुटेबल हो। सुटेबल इन व्हाट टर्म्स? कंपैटिबिलिटी। व्हाट इज दैट कंपैटिबिलिटी? अ सर्च ऑफ सुटेबल होस्ट body as donor begins। He conduct following two compatibility test। समय समय पे उसके पास जो भी सैंपल आता है ना, as a via through application of any person who is interested in donation, that's another legal issue। हम तो एक साइंस की बात कर रहे हैं, सबको मेरी बात आ रही है समझ में? वो ऑर्गन और सोर्स ऑफ दैट ऑर्गन बॉडी कहां से, क्यों, किन कंडीशंस में आ रहा है, दैट्स अनदर मैटर ऑफ जुरिडिक्शन। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि एक डॉक्टर अपना काम कर रहा है, वो कैसे गिवन सैंपल एक्स वाई जेड जो भी उसके पास मौजूद है, उसमें से एक को वो कैसे घोषित करता है सुटेबल। सुटेबल मतलब हाँ ये लायक है, 100% कभी नहीं हो सकता, बट हाँ बेटर ऑप्शन है, ये कैसे जज होता है? दैट्स द साइंस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो आपका क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट्स भी तो ऐसे याद रखना है आपको। He conduct following two compatibility test। What are those two laboratory tests? एक को कहते हैं HLA टाइपिंग, एनसीईआरटी में जाके 12th पोर्शन में आप इस चैप्टर में जाके पढ़ के देखिएगा, टिश्यू टाइपिंग लिखा है। क्या लिखा है? टिश्यू टाइपिंग क्यों या HLA टाइपिंग, बात एक ही है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टेस्ट, ह्यूमन एंटीजन टेस्ट। और दूसरा होता है ब्लड टाइपिंग। क्या होता है? देखो आज मैं एक्चुअली आपको एक्चुअल अभी पढ़ा नहीं रहा हूं लॉजिकली, अभी तो मैं आपको कंटेंट्स लिखवा दे रहा हूं। अल्टीमेटली तुम देखोगे कि ऐसे ही याद रखना है टू सॉल्व द क्वेश्चन।
कि एक डॉक्टर जो दो टेस्ट करते हैं, उन दोनों टेस्ट में व्हाट इज द बेसिस ऑफ एचएलए टाइपिंग? टिश्यू टाइपिंग में क्या करते हैं? एमएचसी कंपैटिबिलिटी। व्हाट इज एमएचसी? पहली हेडिंग लिखा हुआ है, इसी में तो उस बात का चेकअप होता है। एमएचसी कंपैटिबिलिटी ऑफ टू पर्सन। वही जो रेसिपिएंट बॉडी, उसके शरीर से टिश्यू निकाल के रख लेते हैं सैंपल में, उसका टेस्ट तो पता ही है कि क्या आना चाहिए, बार बार करने की जरूरत नहीं, बस हर बार डोनर XYZ 1 2 3 जो भी सैंपल आता रहेगा उसका और इसका एमएचसी के लिए जो टेस्ट मिलाते रहेंगे। एचएलए टाइपिंग का ये मतलब। और ब्लड टाइपिंग अंडरस्टूड है, ब्लड ग्रुप मैच करना। Procedure X, Y. X is donor, Y is recipient. Suppose donor has gone through this two tests. HLA and blood type. ये तो 100% मैच करना चाहिए, 100% मैच करना चाहिए। मेन आ जाता है एचएलए टाइप, जो कि किसी भी दो लोगों का 100% कभी एक जैसा नहीं हो सकता। बट कितना कर गया? 90%। कितना कर गया? 10% रिजेक्शन का चांस है, मतलब जितना मैच नहीं करेगा उतना ही परसेंट क्या होगा? रिजेक्शन चांस है बढ़ने का। यानी सक्सेस रेट 90% है और फेलियर रेट 10%। सिंपल सा स्टैटिस्टिक्स, यस और नो? एंड डिसीजन बीइंग टेकन, इतना चलेगा। क्यों? बिकॉज नोट, रेस्ट इज कंपनसेटेड, मतलब जो दिख रहा है यहां पर, रेस्ट इज कंपनसेटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स। या तो वो डेरिवेटिव्स ऑफ कॉर्टिसोल होंगे, सबको आ रहा है याद? सिंथेटिकली डेरिवेटिव्स ऑफ कॉर्टिसोल, या फिर बायोटेक्नोलॉजी और चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, साइक्लोस्पोरिन ए is used as one of the most commonest immunosuppressive drug। और ये किसको दिया जाएगा? Administered of this drug to recipient, to donor को नहीं। हमेशा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ड्रग डोनर को थोड़ी दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? सबको आ रही है मेरी बात समझ में? देखिए, आज मैंने अभी ये नहीं पढ़ाया कि व्हाट इज एचएलए, ये कहां से आया, व्हाट इज एमएचसी, एमएचसी खुद क्या है, ये सब बताएंगे आपको। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सपोज टू बी किडनी, जैसा कि अभी अभी हम केस पढ़ रहे हैं, and a urologist as a transplant expert along with nephrology team plan to do that surgery, and thereafter a search begins of a suitable, who is a suitable host, whose two things must on test compensate and compatible with recipient. Both HLA should match each other and blood type 100% and the difference occur with HLA typing। वही degree of सक्सेस डिसाइड करता है ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जहां 82% अब मैच कर जाता है, इट इज बीइंग चूजन एज अ सुटेबल होस्ट ऑफ डोनर। सबको आ रही है मेरी बात समझ में? क्योंकि जो ड्रग्स है और जो पूरा आज हमारा साइंस है, वो उस 20 से 15% के डिफरेंस को
क्या करता है, मिनिमाइज कर सकता है, रिस्क लेके काम करते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? जहां 80% से बिलो आ रहा है वो मैचिंग रिजेक्टेड, नॉट सुटेबल, नेक्स्ट, और खोज जारी चलता रहता है। एक प्रैक्टिकल बात मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये बात, तो पॉइंट टू बी नोटेड। बाकी जो डिफरेंस आ रहा है, इट इज बीइंग सपोर्टेड एंड एंटिसिपेटेड बाय व्हाट, अ कोलैबोरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रग इफेक्ट, दैट इज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। व्हाट इट डज, ये क्या करते हैं? कमिंग टू द कंसेप्ट, these drugs suppress the टी किलर सेल्स। कौन से सेल्स? ऑब्लिक टी लिम्फोसाइट्स। चार टाइप के होते हैं, उनमें से किलर टी लिम्फोसाइट साइटोटॉक्सिक, जो इनकी जो जिम्मेदार है फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, फॉर वही जिम्मेदार है जो है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। एक क्वेश्चन तो यही आज सॉल्व हो गया कि इन बॉडी कैंसरस सेल्स एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन आर प्रोमोटेड बाय, है ना, बी सेल्स, न्यूट्रोफिल, ऑप्शंस। अब इसको तुम चैप्टर ब्लड हिस्टोलॉजी पढ़ते हुए सर्कुलेटरी सिस्टम का मान लो, वहां भी बता दिया जाता है। इम्यूनिटी का तो क्वेश्चन है ही ये डायरेक्ट, क्योंकि आज हेडिंग लिखा ही है मैंने, या आज आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पढ़ते हुए कंसेप्ट पढ़ लिया। सबको मेरी बात आ रही है समझ में, एवरीवन? तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का जो मेन वर्किंग सेल है, दैट इज किलर टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, उसको क्या करना, सप्रेस करना, ये उसके इन ड्रग्स की जिम्मेदारी है। या फिर CMIR, जिससे क्या होगा, वो 10-15% जो भी चांस था रिजेक्शन करने का, वो मिनिमाइज हो जाता है। बट लॉन्ग टर्म ऐसे 5-10 साल तक वो ठीक है, लेकिन इतने सालों में इम्यूनिटी 50% इम्यूनिटी डिमिश्ड रहता है। क्या रहता है? और कहीं ना कहीं ये सेल्स के जो है इस तरह से नॉन फंक्शनल रहना, इनएक्टिव रहना, में लीड टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, में लीड टू OI कंडीशन, है ना। एड्स इज अ रिजल्ट ऑफ OI, बट ऑल OI डजंट लीड टू एड्स। मेरी बात आ रही है सबको समझ में? वो कंसेप्ट है OI, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन के अलावा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने के चांसेस बनते हैं कैंसरस ग्रोथ। कैसा ग्रोथ? क्योंकि यही वो सेल्स है जो थ्रू आउट द बॉडी पेट्रोलिंग करते हुए, सबको मेरी बात आ रही समझ में, गिव्स अ साइटोकाइन बैरियर, गिव्स अ मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स एज नेचुरल किलर सेल्स। विच सेल्स? सबको आ रहा है समझ में मैं कहां क्या पढ़ा रहा हूं और कहां पहुंच गया? आउट ऑफ कोर्स नहीं, सबको मेरी चैप्टर इम्यूनिटी चल रहा है, और उसके सबसे पहले ही हेडिंग में जहां सारे टाइप के फर्स्ट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मेंशन्ड है, उसमें कैटेगरी है ब्लड में साइटोकाइन बैरियर, सेलुलर बैरियर। कौन सा बैरियर? तो दे आर वेरियस ब्लड सेल्स मूविंग अराउंड एज WBC, और उन सारे WBC में से लिम्फोसाइट्स को तो मेनली लिम्फ में होना चाहिए, लेकिन लिम्फ से कुछ ट्रूप ऑफ बटालियन ऑफ सेल्स थोड़े मॉडिफाई होके ब्लड एज वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट मीडियम टू रीच एनीवेयर, एनी प्लेस, तो वही पाथवे सबसे बेस्ट है, थैंक्स टू दी नेचुरल सॉरी दोस टी किलर सेल्स, जिनकी एक टोली, बोलते हैं एक बटालियन, नेचुरल किलर सेल बनकर पूरे शरीर में कैंसरस सेल्स, ट्यूमर इंड्यूसिंग सेल्स की पहचान करके उनको उनको कैंसर में कन्वर्ट होने से पहले ही खत्म कर देना उनकी टेंडेंसी है। एंड दैट्स हाउ एवरी नाउ एंड देन 24 आवर्स में, थैंक्स टू अवर नेचर एंड द बॉडी, कि है ना, ऐसा नहीं कि हमें कैंसर नहीं, हमेशा हमारे शरीर में ट्यूमरस ग्रोथ होते रहते हैं, मोल्स एंड वॉट्स। अरे सबको आ रहा है समझ में? ठीक है, चेहरे पे जो तिल आता है, मोल्स आते हैं, है ना, देख के लोग, है ना, ब्यूटी पे कितने कितने स्टेटमेंट्स दे देते हैं, है ना। अरे आ रहा है समझ में? सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कंसेप्ट क्या है कि दोस आर एक्चुअली ट्यूमर्स, बेनिंग ट्यूमर्स। क्या है वो? ठीक है, देख के खुश होने की जरूरत अब से नहीं है। सबको आ रहा है समझ में एवरीवन? तो इस पूरे डिस्कशन में क्वेश्चन कहां कहां क्या क्या कवर हुआ कि इट्स अ मैटर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, to perform a healthy successful organ transplantation, a person must assure the immune response जो बॉडी में है। and which immune response? CMIR, जो कि एक ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को रेसिपिएंट बॉडी में डोनर के शरीर से एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा।
that response is rather called graft rejection. बट ग्राफ्ट रिजेक्शन क्यों होता है? क्योंकि वो एक्चुअली किस चीज को कंपैटिबली सर्च करता है कि अगर एचएलए मैच कर जाएगा तो ठीक है, एक्सेप्टेड, नहीं करेगा तो रिजेक्टेड. तो दो चीजों का एक्चुअली जो है यहां पर कंपैटिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, विच द डोनर बॉडी हैज टू गो थ्रू. मान के चलिए उसमें 100% ये तो मैच करना चाहिए, बट द डिफरेंस लाइज विद द एचएलए टाइपिंग. एंड प्रैक्टिकली इट इज टेकन समथिंग 82% एवब मान के चलते हैं, क्योंकि जो भी ड्रग्स अवेलेबल है उनकी जो पोटेंसी है वो 10-15% डिफरेंस को मिनिमाइज कर सकते हैं. कभी 100% तो नहीं कर पाते, लेकिन काफी हद तक दैट्स एनफ. क्योंकि एट द एज ऑफ 55-60 किडनी फेल रिपोर्ट हुआ है ना. तो दादाजी जो है अब अगले 10 साल भी जिंदा रह गए किडनी लेके, बहुत है. अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? अरे यस और नो? कुछ बीमारियां है ना कि एक उम्र में हुआ है तो उसको लेके कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए. ऐसे भी जाते हैं, ऐसे ही चले जाएंगे, उसमें क्या है? अरे सबको आ रहा है समझ में? बोथ बर्थ एंड डेथ आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, है ना. वो तो हम इमोशनली टर्बुलेंस एक हिचकोले से गुजरते हैं एंड वी कांट एक्सेप्ट द डेथ एस्पेक्ट सोसाइटी में. अरे मेरी बात आ रहा है समझ में? कूड़े की ढेर की तरह पड़े रहने से अच्छा जल्दी निपट जाओ. अरे बर्थ रेट बढ़ते बढ़ते कोई मरना ही नहीं चाहता, सब अमर रहना चाहते हैं. तो पॉइंट टू बी नोटेड, इसलिए इस बात को वैसे मेंशन किया. तो ये क्वेश्चन है कि वो किस सेल को डिमिश करता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, कौन से चीज इस्तेमाल हो सकते हैं. मेरे नोट्स में मेंशन था, इसलिए तो इनको मिरेकल मेडिसिन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल आर कॉल्ड लाइफ सेविंग ड्रग्स, मिरेकल मेडिसिन के अलग अलग जो है एस्पेक्ट्स के चलते हुए आज इनको हम लाइफ सेविंग ड्रग की तरह इस्तेमाल करते हैं. तो उसका ये एग्जाम्पल है. तो बाय दिस डिस्कशन आई एंड द टॉपिक that is excretory system. Now I have planned कि I will give a rest. वो topic nervous system और थोड़े देर बाद start करेंगे. पहले मैं 2 topics पहले complete कर लूँ, circulatory and respiratory system. पहले respiratory system पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है? नहीं मतलब क्या है कि बैच E1 हिंदी में उसमें तो क्या है, मैं ही पढ़ा रहा हूँ पूरा, मतलब पूरा ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब पूरा मतलब. तो तुम लोगों को क्योंकि और एक सर पढ़ा रहे हैं तो ये पढ़ना है, क्योंकि 2 चैप्टर हो चुके हैं ना, डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी. अरे ठीक है ना, मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ, मतलब मैं सर्कुलेटरी पढ़ा दे रहा हूँ और उसके बाद नर्वस पे पहुंचना है. चलो अब नेक्स्ट यानी डे आफ्टर टुमारो आई एम स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. उसको पढ़ाते हुए मैं 2 चैप्टर्स एक साथ कंप्लीट करूंगा. एक्चुअल आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो मेजर है विद द चैप्टर इम्यूनिटी. सबको आ रहा है समझ? क्योंकि देयर आर 2 सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन परफॉर्मिंग 2 थिंग्स एट अ टाइम, सर्कुलेशन एंड इम्यूनिटी. दोनों ही तो कर रहे हैं. ब्लड करता है 80% ट्रांसपोर्टेशन, 20% इम्यूनिटी, और लिम्फ 15% ट्रांसपोर्टेशन एंड 85% इम्यून फंक्शन. ठीक है, तो पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर ले. लेकिन फ्रॉम नाउ फ्राइडे तक आपका यही चैप्टर चलेगा. लेकिन नेक्स्ट वीक हर मंडे जो है आपका चैप्टर चलेगा टेक्सोनॉमी. क्या चलेगा? सब लोग ने कॉपी जाके एक बार देखा है खुद, मतलब जो आपको बुकलेट्स मिले हैं, हाँ ये रख दिए इधर उधर, कुछ ने किलो के भाव से बेच भी दिए होंगे कि अरे आपको 6 बुकलेट्स मिले हैं फ्रॉम द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टिल हेमिकॉर्डेट्स. ठीक है, एक क्लास में एक फाइलम कंप्लीट हो जाएगा, दैट विल बी अवर स्पीड. तो 2 महीने के अंदर जो है आपका विद इन दैट अक्टूबर एंड बिफोर दीपावली हॉलीडेज में आपका टेक्सोनॉमी भी कंप्लीट कर दूंगा, और साथ में फिजियो तो जितना हो ही जाएगा. किसी को कोई डाउट? लेकिन सब लोग समझ पा रहे हैं ना कि कैसे ब्लेंड करके अलग अलग जगह आप चीजें पढ़ रहे हैं, एवरीवन? क्योंकि फाइनली यही काम आएगा. एक ऑर्थोडॉक्स स्टडी होता है जो 11th-12th में करते हैं हम लोग, पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पता. वो अलग बात है कि अभी भी कुछ पता नहीं था, वो अलग बात है.